Okay, so welcome to the current affairs lecture. So this is the lecture for 2024 prelims plus mains. Okay, ethics का master doc आने में समय है. I think 20th August. You will get, and after till on 20th August you will get the master docs for the theory part, and on 30th of August मतलब 10 दिन के बाद you will get the master document for the case studies. Okay, case study का एक workbook type का मैं बना रहा हूँ और उसमें सारे केस स्टडी रखा रहेगा एंड यू कैन प्रैक्टिस द केस स्टडी फ्रॉम दैट. अराउंड 50-60 केस स्टडीज में मैं जो टेलर करके आपको उसमें दे दूंगा. एंड देन 10-15 डेज आगे जितने भी कोट्स हैं, इंपॉर्टेंट थिंकर्स के जो कोट्स हैं, वो आपको मिल जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. जैसा कमिटमेंट है उस हिसाब से आपको मिलता रहेगा. ओके, तो जन विश्वास बिल 2023 जो है, इट हैज बीन प्रपोज्ड बाय द सेंटर. ओके, एंड उसमें क्या है, ओके उसमें क्या है वो भी देखना है हमें. व्हाट आर दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द बिल. बिल में ऐसा क्या है कि उस पे इतना अप्रोर मच रहा है. व्हाट आर दी पॉजिटिव एडवांटेजेस. Okay, what are the advantages that this bill will bring and what are the disadvantages that activists are talking about. तो ये सारी चीजें हमें बात करनी है. ओके, तो यहाँ पर एक बहुत डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट आपको मिल चुका है, इसको आप रिवाइज भी कर सकते हो, बट पहले मैं समझा देता हूँ आपको. ओके, so Jan Vishwas bill has been proposed by the center. Jan Vishwas bill is a Hindi word. Okay, Jan Vishwas, for those whose mother tongue is not Hindi, let me tell you that Jan Vishwas is a Hindi word. Jan Vishwas means people's trust. Okay, so this bill, Jan Vishwas bill, called the People's Trust Bill in English, तो ये it is basically there to enhance people's trust. मतलब लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए ये बिल को लाया गया है. ऑल राइट, सो व्हाट आर इट्स एडवांटेज, लेट अस सी. सो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. So it was recently, this is 2023, so it was recently passed in the parliament. It was passed to give boost to two dimensions. It was passed to give boost to two dimension. And what are those two dimensions? These two dimensions are ease of living and ease of business. So can you tell me which are the two important stakeholders that this bill is trying to target? क्या आप बता सकते हो दो ऐसे कौन से कम्युनिटी है जिसको this bill is trying to target? I have told you that it is proposed to further boost ease of living and ease of business. One you have got it. Industry, very good. Business, industry या business, okay, we will say business. ठीक है. And consumers or general public, good, very good, excellent. So this bill, this people's trust or the Jan Vishwas bill, it is here to further ease the life of industry and businessmen and consumers. अब ध्यान से सुनना, बहुत ही आप ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं आपको कि है क्या ये. So a lot of bills, okay, in India, so they carry a colonial legacy. And what is that colonial legacy? So in the colonial times, जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, तो सारे बिल्स में there were a lot of punitive provisions. मतलब छोटी छोटी गलती पे पनिशमेंट्स के प्रोविजंस थे. And this legacy, it was taken forward by the government of independent India. This legacy of punishing industries and businesses for small things. Okay, all right, for small things वो punitive punishment दे रहे थे. Okay, what is that? No ease of doing business. Okay, no ease of doing business. Okay, correct. ठीक है, तो जन विश्वास बिल है. व्हाट इट इज डूइंग, इट इज ट्राइंग टू ब्रेक ऑफ. ओके, ब्रेक ऑफ फ्रॉम व्हाट? द colonial legacy. Okay, it is trying to break off from the colonial legacy and it seeks to amend 42 laws across multiple sector including agriculture. Why? Because around 60% of the population is directly and indirectly dependent on the agriculture. Okay, so that's why it is trying to deregularize. What it is trying to do? Deregularize this sector. देखो, कहने का मतलब यहां पर क्या है, that small issues जिनको ऑन स्पॉट
रेमेडी कर सकते हैं, स्मॉल इश्यूज जिनका हम ऑन स्पॉट रेमेडी कर सकते हैं, उसके लिए पनिशमेंट क्यों देना? अगर सपोज एक मशीन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है एक फैक्ट्री में, तो एक नोटिस दे दो कि आपको मशीन को बनाना होगा, ओके, और ये लो 10,000 की पेनल्टी, दैट्स इट। लेकिन हमारे लॉज में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लॉज, दैट दिस मैटर विल बी टेकन अप बाय द कोर्ट, कोर्ट में जाता है, द बिजनेसमैन, ओके, ही हैज टू स्पेंड अ लॉट on small legal matters. Even a small fault, okay, even a small fault is punished very dearly, okay, and that's why there is no ease of doing business. अब यहां पर देखो, mammoth 42 laws across multiple sector, agriculture, environment आपको पता है कि that it is actually and very anti business. जो environment regulations हैं, although it is very necessary, environment protection is again a different domain. Environment is very necessary, but at the same time, due to environmental clearances and due to this whole syndicate that has come up, okay, this extractive syndicate. So what happens in the environment sector is that in the name of environmental clearance, there is a lot of corruption. So a business will get harassed, okay, a businessman, they get harassed a lot in the name of environmental laws, okay, so that's why there is a need to deregularize here also, okay. Then we come to the media, okay, there is a lot of regulatory cholesterol in media also, so this will actually boost, okay, this will actually boost our freedom of speech, okay. This will have a direct impact on freedom of speech, because a lot of times what happens is that government of the day, if media is an enemy, okay, if the government of the day perceives certain media house as the enemy, so what they will do is they will go after them, okay, they start going after them, उनके अगेंस्ट चले जाते हैं, एंड उनको हाउंड करते हैं छोटी छोटी बातों पे, कि आपने ये लाइसेंस ऐसे कर दिया, आपने वो लाइसेंस ऐसे कर दिया, तो अलाउ अब आप जेल जाओ, ओके, नाउ यू गो फॉर दिस मैटर ऑल्सो, यू गो टू जेल फॉर दिस मैटर ऑल्सो। सो उससे क्या होता है कि मीडिया में भी ये होता है, ठीक है। नहीं, वो नहीं है, दैट इज डिफरेंट मैटर, ओके। एफसीआरए इज मोर रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, ओके, डोंट कंफ्यूज दैट विद दिस। देन कम्स हेल्थ। हेल्थ सेक्टर में क्या है, फार्मा। इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज द फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज द स्पेशली द जेनरिक फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या होता है कि फार्मा फार्मा का हार्ट बोला जाता है, ग्लोबल ग्लोबल हब है हम। और उसको बेटर करने के लिए, ओके, उसको बेटर करने के लिए ये हेल्थ सेक्टर को भी डीरेगुलराइज कर रहे हैं। फाइनली पब्लिकेशन और भी बहुत सारे। Alright, 42 laws is not limited to these sectors, but these are the core sectors जहां पर जन विश्वास बिल और दी पीपल्स ट्रस्ट बिल जो है उसका फोकस है। It proposes to amend 183 provisions to be decriminalized administered by 19 ministries। तो क्या है, what are the statistics, पहले वो देख लेते हैं। 42 laws, एक 42 laws, 183 provisions, 19 ministries, सोच रहे हो, एंड डिपार्टमेंट्स। मतलब दिस बिल इज गोइंग टू इम्पैक्ट 19 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, 183 प्रोविजंस एंड 42 लॉज, ओके। सो अब हम बात करते हैं जन विश्वास बिल, द गुड। इसमें अच्छा क्या है, व्हाट इज गुड इन दिस? सो एक आर्टिकल आया था राघव चंद्रा का। राघव चंद्रा इज एन एक्स ब्यूरोक्रेट, ही इज अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, ही वाज अ सेक्रेटरी to the government of India, means he was an IS officer. He has written an article, More Trust and Less Suspicion. So this is to highlight the positives of the bill. अब इसमें क्या है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा इसमें जो बेनिफिट है, दैट इज रिडक्शन ऑफ बर्डन ऑन कोर्ट्स। आपको पता है देर आर 4 करोड़ अप्रोक्सीमेट पेंडिंग केसेस इन इंडिया। इन इंडिया देर आर 4 करोड़ पेंडिंग केसेस। Some cases they date as back as 1800s, मतलब 19th सेंचुरी के केसेस अभी तक चल रहे हैं इंडिया में।
ओके, आई टोल्ड यू गाइज अबाउट अ केस इन बिहार जहां पर 2022 में 1914 का एक लैंड का मामला था. ओके, देयर वाज अ केस ऑन लैंड, and in 2022 that order was passed, and it was the fifth or sixth generation which was fighting the case in civil court. And can you tell me, if there are 4 crore cases, if there are 4 crore cases pending, most of them are saturated where? In the Supreme Court, in the High Court, or in the lower courts? In the lower courts. Very good. So around approximately, you can say around 70 to 80% of these 4 crore cases, they are situated or they are saturated in the lower courts. So what it is doing, it is converting several fines to penalties. These Jan Vishwas bill, okay, these Jan Vishwas bill, it is converting several fines to penalties. So what is one of the reason? Okay, what is one of the reason that why these 4 crore cases are pending? Okay, why these 4 crore cases are pending? One of them is, one of the reason is that Britishers, what they did in their IPC and what they did in their acts is that they unnecessarily, okay, to create an atmosphere of fear. सो ब्रिटिशर्स का क्या था कि इंडियंस को दबा के रखना है, इंडियंस को क्या करना है, नीचे रखना है. तो दैट्स व्हाई व्हाट दे डिड वाज दे included a lot of punitive punishments, okay, a lot of punitive provisions, ठीक है, a lot of punitive provisions was placed here. And that's why so many cases got pending, because छोटी सी छोटी बात के लिए कोर्ट जाना पड़ता था. यहां ध्यान से देखना, प्लीज see very carefully. What the bill does is to convert several fines to penalties. Can anyone tell me फाइन और पेनल्टी में क्या डिफरेंस है? मतलब फाइन से तो पेनल्टी हो गया. Okay, very good. You have asked a question. What is the difference between fine and penalty? Here is the answer. I knew that this confusion might come up. So here is the answer. Fine is referred to as a sum of money ordered by the court. Here in fine, the court is involved. In fine, the court is involved, and after the complete prosecution, matlab there is a need for prosecution. Prosecution कहां से होता है? कोर्ट से होता है. This leads to what? This leads to judicial cholesterol. This leads to legal cholesterol. Okay, correct. Then on the other hand, penalties do not involve court proceedings and they are imposed by a executive या bureaucrat. Okay, तो यहां पर समझ आया? Did you get this point? Why converting fines to penalties is a game changer? यहां पर कंफ्यूजन है किसी को बेनिफिट्स में? That how converting fines to penalties, how converting fines to penalties is a game changer because of this. Because for fines you have to have a need for prosecution and you need to go to court, whereas for penalty, okay, for penalty डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव लगा सकता है and it can be done away with. Okay, ये क्या करता है? This will lead to reduction of burden on court. This will lead to reduction of burden on courts because for every small matter the court will not be disturbed. And then what will happen is that more serious offenses like rape, like murder, like mob lynching, they can be looked after on priority basis. So this is actually ease of living. Okay, this is what? Ease of living. Okay, currently criminal consequences are stipulated for technical and procedural lapses and minor defaults which can be easily remedied. अब जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, there is a lab, there is a lab. Okay, so कोई एक कंपनी है, there is a company and they have a lab, and वहां पर there is a regulation, okay, in a bill that if they will operate that lab, all the people, they will have to wear a sanitized gown. Okay, all the people, they will have to wear a sanitized gown. Suppose an inspector comes to the, okay, a checking inspector, okay, a checking inspector comes to the lab and he sees that two people are not wearing.
So he can on spot, okay, he can on spot tell them that okay, you have to wear those gowns, okay, that PPE kit or the sanitized gowns, and here is a penalty of 20,000 rupees for not adhering. But in the old regime, पहले क्या होता था, that okay, एक कोर्ट का केस होता था, पुलिस आती थी, इन्वेस्टिगेट करती थी कि आपने जी गाउन क्यों नहीं पहना, ओके, आपने ये पीपी किट क्यों नहीं पहना, फिर कोर्ट जाता था, मैजिस्ट्रेट अपना 20 25 30 मिनट जो भी होता था उस पर बहसबाजी होती थी, उसके बाद क्या होता था, क्लॉगिंग होती थी, क्लॉगिंग समझते हो ना, वो आपका टॉयलेट क्लॉग हो जाता है, ओके, तो उसी तरीके से हमारी जुडिशरी क्लॉग हो जाती थी बाय दीज इररिलेवेंट मैटर्स। अभी करंट रेजीम में जो न्यू रेजीम आने वाली है, ओके, हाँ, फिर सालों आर्ग्यू करती थी कंपनी, कंपनी फिर जाके हाई कोर्ट पहुंचती थी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचती थी। अब क्या होता है, व्हाट विल हैपन नाउ इज दैट कि अब ऑन स्पॉट इंस्पेक्टर उनको क्या लिखेगा, ये लिख देगा कि जी 20,000 का आपको चालान, ये लो, ऑन स्पॉट ये आपका है और आप 20,000 भर दो और ये आगे जाओ, आप ठीक है, आप अपना काम करो, यू मेक योर मेडिसिन, यू मेक योर वट एवर यू आर डूइंग, ओके। तो यहां समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस, ओल्ड रेजीम एंड द न्यू रेजीम, प्री जन विश्वास एक्ट एंड पोस्ट जन विश्वास एक्ट के बीच में डिफरेंस। आई होप एवरीवन गॉट इट। These provisions, where criminal liability was embedded with every small provision, was a reflection of colonial mindset. यहां पर हम बात करेंगे in the bad. We will talk about it in the bad. Okay, both of you, Shrivats and ये Swordfish, we'll talk about it after in the bad. अभी good के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों को साथ लेके चलते हैं। सो दीज प्रोविजंस क्या है कि क्रिमिनल जो लाइबिलिटी था हर जगह घुसा दिया जाता था, दैट वाज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट। दिस वाज नो गवर्नेंस, दिस वाज रूल ऑफ टिरनी, ओके। सो ये क्या करता था, हेल्प्ड ब्यूरोक्रेट्स एंड द जुडिशरी बुली innocent businessmen and create, okay, an unfriendly business atmosphere, okay। कौन कौन से एक्ट्स इसमें इंपैक्टेड हैं, ये सारे नहीं है, ओके, दीज आर द मेजर एक्ट्स दैट आर इंपैक्टेड। रबर एक्ट, टी एक्ट, स्पाइसेस बोर्ड एक्ट, फार्म प्रोड्यूस एक्ट, तो ऑल आर रिलेटेड टू व्हाट, एग्रीकल्चर। देन मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एक्ट, आपको पता होगा शायद इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स, ओके, इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है उस हिसाब से वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट, ओके, प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ मरीन प्रोडक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज फिशरीज जो आपको पता है ना, 2x करना है हमें, फार्मर का इनकम जो है हमें 2x करना है, तो उसमें जो फिशरीज है, ओके, फिशरीज भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ओके, यस, फिशरीज जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। देन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, यहाँ पर इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी बनानी है, तो इसीलिए दैट्स व्हाई वी नीड टू अमेंड दैट आल्सो। लेकिन यहाँ पर एक इशू भी है जिसका हम बात करेंगे। Many of these laws have innumerable imprisonment clause, even though many infringement can be easily remedied। मतलब छोटी सी छोटी बात के लिए जेल, फॉर स्मॉल थिंग, छोटी सी छोटी बात के लिए इनको जेल हो जा रही थी। दैट्स वाई बिजनेसेस, ओके, दे वर नॉट अप्रिशिएटिंग जो इंडिया अपॉर्चुनिटी दे रही थी, उनको लग रहा था कि यार मैं थोड़ा सा भी काम करूंगा, ओके, मैं छोटे से छोटा काम करूंगा तो आई कैन बी इन ट्रबल, तो रादर आई शुड सेट अप माई फैक्ट्री मे बी elsewhere, okay, not in India, because there is a lot of regulatory cholesterol, okay, there is a lot of regulatory cholesterol, ठीक है। द गुड समझ आया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बैड। what is the bad in this bill and what are the apprehensions, okay, apprehensions of the civil society and the activists। So यहाँ पर एक आर्टिकल है प्रशांत रेड्डी का, ही इज अ लॉयर, so he has written the bureaucracy as a prosecutor and judge and I have used this to make an argument against the Jan Vishwas Act। So जो bill है, it has transferred the power of imposing punishment from judiciary to bureaucracy, okay। ये जो क्या है, जो bill है, it has transferred, okay, from judiciary to bureaucracy। This seriously violates defined separation of power, ओके। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले रूलिंग दी थी दैट कोई भी जो जुडिशियल फंक्शन है, एनी जुडिशियल फंक्शन, इट कैन ओनली बी परफॉर्म्ड
by an independent judicial authority. ओके, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जुडिशियल फंक्शन जो है इट कैन ओनली बी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी, फ्री फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, किसी भी तरीके का एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से ऊपर जाके जुडिशियल अथॉरिटी को देना। एंड दिस वायलेट्स आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 50 क्या कहता है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट डज आर्टिकल 50 स्टेट्स? आर्टिकल 50 एनीवन? सेपरेशन ऑफ पावर, द स्टेट शैल इंश्योर, है ना? द स्टेट शैल इंश्योर कौन से पार्ट में आता है? कौन से पार्ट में आता है? विच पार्ट ऑफ द पार्ट 4 में आता है? वेरी गुड, डीपीएसपी में आता है। तो कहता क्या आर्टिकल 50 दैट स्टेट्स, जो स्टेट है इट मस्ट टेक नेसेसरी स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो ये वायलेशन है आर्टिकल 50 का, ये ध्यान रखना। ओके ये जो कह रहा है दिस इज बेसिकली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 50। देन रिमूवल ऑफ पीनल प्रोविजंस। ओके वी आर डिस्कसिंग जन विश्वास बिल, ओके 2023। removal of penal provision especially in critical sectors like pharmaceutical has been questioned। यहां पर प्रॉब्लम क्या है? अभी गाम्बिया में जो हुआ आपने देखा, इतने सारे बच्चे मरे ड्यू टू इंडियन कफ सिरप। इंडियन कफ सिरप जो था उसके वजह से गाम्बिया में, इंडोनेशिया में, अ लॉट ऑफ किड्स इन सेंट्रल एशियन कंट्री, वहां पर बहुत सारे किड्स को बीमारी फैली। यस, ठीक है, उज्बेकिस्तान में, करेक्ट। और हमने अभी इराक में, अभी जो इंडिपेंडेंट ड्रग इंस्पेक्टर्स ने पाया कि 0.2% होना चाहिए था एक पर्टिकुलर एलिमेंट, वो इंडियन कफ सिरप में 2.5% था। ओके, यस, दैट वाज अ हरियाणा बेस्ड कंपनी एंड दैट वाज क्लोज्ड। तो इनका कहना है एक्टिविस्ट का कि स्पेशली इन द फार्मा सेक्टर डीरेगुलराइजेशन, अभी जो गाम्बिया में हुआ 79 किड्स वेर डाइड, राइट? 79 किड्स डाइड, राइट? यस। तो वहां पर क्या है कि अब हमारा एक बैड इमेज बन रहा है इंडियन मेडिसिन का, और इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज इंडियन मेडिसिन आर स्क्रूटिनाइज्ड। इंडियन मेडिसिन का जो क्वालिटी है इट इज बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड। तो ये क्या कह रहे हैं दैट आपने, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री को डीरेगुलराइज कर रहे हो, इफ यू आर डीरेगुलराइजिंग फार्मा इंडस्ट्री, so this will further impact the quality, and at a time when you should be imposing further scrutiny, at a time you should be imposing further scrutiny, what you are doing, you are giving them more room to make the same mistakes. So that is one of the issue that needs to be addressed. Okay, अब हम देखते हैं what is the way forward, what is the way forward in this. So एक बात आप समझ लो that it is easy to tighten the law. Okay, लॉ को टाइट करना आसान है, लेकिन लॉ को लूज करने में पसीना छूट जाता है। एंड दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स, दैट इट इज इजी टू मेक द लॉज, इट इज इजी टू मेक द लॉज, और उसको टाइट करने के लिए किसी प्रोविजन को, बट उसको इजी करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। ओके, तो ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। लेकिन एक और इशू क्या आता है यहाँ पर, दैट सपोज पीनल प्रोविजन now has been transferred to the executive. Okay, yes भाई जी प्लीज। भाई मैं लास्ट पॉइंट के रिगार्डिंग कहना चाहता हूँ कि जो ये फार्मास्यूटिकल्स में जो चेंज हुआ है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में चेंज हुआ है ना, तो भाई वो 19 एनएसक्यू मेडिसिन पे अप्लाई नहीं है जहां तक मैंने पढ़ा था। आप एक बार दोबारा कंफर्म कर लेते ना, जो नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिसिन है ना उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो जो भी करेक्ट अपन एक्सपोर्ट करते हैं जो एनएसक्यू मेडिसिन है उन पे तो अभी भी मतलब उतनी स्ट्रिक्टनेस रहेगी, तो वो वाली दिक्कत नहीं आनी करेक्ट। चाहिए। बाकी आप देख यहाँ, लीजिए। यस, ये देखो, it allows manufacturer of not NSQ क्या है, not of standard quality drugs to escape significant penalty despite the fact that these drugs can have an adverse effect on the patient. Yes, ये रहा आपका point. I think this was the point you wanted to make, correct? Right.
सो इनका जो पॉइंट है, जो इनका पॉइंट है, इट इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, दिस इज द पॉइंट। इनका जो पॉइंट है दैट इज नॉट रिगार्डिंग दी टेक्निकलिटीज, ओके, दैट इज उनको टेक्निकलिटी से मतलब नहीं है। उनका जो पॉइंट है, जो एक्टिविस्ट पॉइंट उठा रहे हैं, इट इज दैट कि आप एक एज अ होल, आपको स्क्रूटिनी करनी है इंटायर फार्मा सेक्टर की। ओके, एज अ होल आपको क्या करना है कि एज अ, ओके एक मिनट, ठीक है, एज अ होल आपको क्या करना है कि स्क्रूटिनी इंटायर सेक्टर की करनी है। अगर आप एट अ टाइम व्हेन द फार्मा सेक्टर ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी अंडर प्रेशर, ओके, सो देयर वाज एन आर्टिकल जिसको मैंने नहीं लगाया, आई विल सेंड दैट आर्टिकल टू यू। उसमें ये आर्ग्यूमेंट लिया हुआ था, अब वो थोड़ा सा पुराना आर्टिकल है, आई थिंक दैट वाज फ्रॉम जुलाई, अर्ली जुलाई। तो उसमें क्या बोला हुआ था दैट एट अ टाइम, ओके, ऐसे टाइम पे जब पूरे जो हमारे वर्ल्ड में डेवलपिंग पार्टनर्स को हम जो मेडिसिन भेज रहे हैं वो स्क्रूटिनी के अंदर है और पूरी फार्मा इंडस्ट्री प्रेशर में है, और आप ऐसे टाइम पे जब आपको एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी खुद करनी चाहिए थी, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए था, ओके, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए था, तब आप क्या कर रहे हो, उस सेक्टर को डीरेगुलराइज कर रहे हो। ओके, सो दे आर नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट द टेक्निकलिटीज, ओके, कि एनएसक्यू है दैट इफ इट इज एन एनएसक्यू ड्रग or a standard quality drug, so they don't care about that. But इनका जो मेन क्रक्स है, ओके, क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है, दैट ओवरऑल स्क्रूटिनी बढ़ानी पड़ेगी, ओके, ओवरऑल स्क्रूटिनी बढ़ानी पड़ेगी फार्मा सेक्टर पे, ओके, ओवरऑल स्क्रूटिनी नीड्स टू बी देयर फॉर द फार्मा सेक्टर। तो ये चीज, ये वाली पॉइंट है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। एक और वन प्रोविजन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज दैट कि अब करप्शन बहुत ज्यादा होगा। आपने क्या किया है कि जो पीनल पेनल्टीज है, पीनल प्रोविजंस है, वो किसके हाथ में दे दिया है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दिया, यहाँ बता रहा था, एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दिया। सो एनी ड्रग इंस्पेक्टर और एनी इंस्पेक्टर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, ही कैन वर्क इन एनी फैक्ट्री, और वो क्या कर सकता है कि मैं 10,000 का चालान काट देगा, मेरे पास पावर है, 5,000 दो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता ही है यार। ओके, देयर मतलब मैसिव करप्शन इज देयर, ओके, मैसिव करप्शन इज देयर कि मैं काट दूंगा। लेकिन यहां पर एक चीज है, कैन यू टेल मी यहां पर चेंज क्या आया है? अब बिजनेसेस डरेंगी क्यों नहीं? कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी बिजनेसेस डरेंगी क्यों नहीं? बिकॉज अब जेल नहीं जाना, वेरी गुड, अब जेल नहीं जाना है और कोर्ट के लफड़े में नहीं पड़ना। कोर्ट का लफड़ा, कोर्ट का जो लफड़ा होता है वो सभी को बहुत ज्यादा भारी पड़ता है, ओके, बिकॉज आर जुडिशियरी इज स्लगिश, जुडिशियल सिस्टम इज स्लगिश। मतलब सालों साल, 2004 का केस है, समझ जाओ, सपोज 2004 में कोई केस आपके ऊपर लगा है और 2023 तक चल रहा है, आप मतलब अच्छे से जिंदगी काट रहे हो हर महीने, लेकिन फिर आपको जाना है, ठीक है। यहां पर एक और चीज है, व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर, व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर इज दैट जो पेनल्टीज हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहां पर आपने, मैं एग्जांपल पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, व्हाई पेनल्टी शुड नॉट बी सिग्निफिकेंट। आपने देखा ट्रैफिक में यही हुआ, ट्रैफिक में गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन थी, गवर्नमेंट की ट्रैफिक में क्या इंटेंशन थी कि हम क्या करेंगे कि जो ट्रैफिक वाला जो फाइन्स है, जो पेनल्टीज है, उसको बढ़ा देंगे। तो पहले क्या था, 200 रुपए लगता था आपके एक चीज का, एंड नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 5,000 मिनिमम। इनका क्या सोचना था, गवर्नमेंट क्या सोचती है कि हम 5,000 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का लगाएंगे, तो व्हाट विल हैपन इज दैट कि लोग डरेंगे, एंड द पीपल दे आर गोइंग टू फॉलो द लॉ। बट व्हाट हैज हैपेंड माय फ्रेंड, because of this increase from 200 to 5,000, there is a reign of terror by the policemen, and they say कि 1,000 रुपए दे, मेरे को 1,000 रुपए दो, नहीं तो मैं 5,000 का चालान काटता हूं तुम्हें। एंड यू थिंक यार 5,000 में कहां से दूंगा, 1,000 रुपए दे के और अपना काम करता हूं मैं आगे जाके, ओके। हम दे से कि चलो 500 रुपए एटलीस्ट दे दो, स्टूडेंट हो तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाता है, गरीब हो तो डिस्काउंट भी मिल जाता है, ऑल राइट।
सो ये चीज है कि 500 रुपए जो है, ओके, 500 रुपए जो है, उनसे आप बढ़ा के आपने 5,000 ये सोच के कर दिया कि अब लोग रूल्स फॉलो करेंगे। बट अब क्या हो रहा है दैट देर इज अ रीन ऑफ टेरर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और पुलिस मैन ऑल्सो कम इन द एग्जीक्यूटिव। तो वही ना हो जाए, वही ना हो जाए कि पहले क्या था, फाइन्स होता था तो एटलीस्ट कोर्ट थोड़ा इम्पार्शियल तो था, कोर्ट थोड़ा तो इम्पार्शियल है। अब तो रीन ऑफ टेरर अनलीश कर देगा ये एक्ट। एनी ड्रग इंस्पेक्टर, एनी स्मॉल टाइम ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, ही कैन वॉक इन एनी फैक्ट्री एंड वो क्या करेगा कि 10,000 रुपए का चालान है, मैं तो जी आपका सब चीज ठीक है लेकिन फिर भी 2,000 रुपए चाय पानी का दे दो आप। एंड दे विल से कि नहीं दूंगा तो ठीक है कोई बात नहीं, 10,000 का चालान मैं काट देता हूँ। यू कैन गो टू दी कोर्ट एंड आर्ग्यू, ओके, यू कैन गो टू दी कोर्ट एंड आर्ग्यू कि दैट दिस पेनल्टी हैज बीन अनफेयर, ओके, एंड देन व्हाट विल द पर्सन से कि ठीक है यार तू 2,000 रुपए ले आगे जा। तो मॉरली बैंक्रप्ट अगर कोई कोई सिस्टम है, इफ एनी सिस्टम इज मॉरली बैंक्रप्ट, तो ये सारे आइडियलिस्टिक लॉज नहीं चलते हैं। एंड दैट कुड बी वन ऑफ द मेजर कॉन्स, ओके, दैट कुड बी वन ऑफ द मेजर कॉन्स। एंड दिस इज वेरी प्रोमिनेंट इन स्टेट्स, might not be in the center but this is very prominent in the states, okay, क्योंकि स्टेट का मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेट का जो गवर्नेंस है that is still stuck in the 1990s. Now one of the way forward is that the government should continue to ease provision to attract more businesses. One thing should be here, however suitable tunings need to be done to ensure a harmony is established between the interests of the public and that of the industry. Okay, that is a good point, that is a good point, that ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में जैसे क्या है, अभी हमने वो जो ड्रग्स वाला देखा, नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ड्रग्स वाला जो देखा, ओके, नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ड्रग्स वाला जो देखा, एंड वहां पर क्या है कि पब्लिक का इंटरेस्ट है टू गेट गुड ड्रग्स, to get quality medicines, but at the same time the businesses also need to thrive, the businesses also need to thrive, so there needs to be suitable tunings that both businesses and at the same time the public can also be satisfied and they can have trust in the system. यहां पर एक चीज आपको नोटिस करना जरूर है, दैट जो हमारा गवर्नमेंट है एट द एंड ऑफ द डे, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, जो गवर्नमेंट है at the end of the day it will always, the state will always retain regulatory power. तो यहां डरने की जरूरत नहीं है, अभी जैसे बिल आया है, इफ द स्टेट विल सेंस, इफ द गवर्नमेंट विल गेट द फीडबैक that okay some provisions are now being misused and are used to harass certain industry, तो वो उसको चेंज कर सकती है, because at the end of the day it is not giving up its regulatory power, it is merely अपने आप को लीश पे लगा रही है with respect to this जन विश्वास बिल और जन विश्वास एक्ट, सिर्फ अपने आप को लीश पे लगा रही है, इट स्टिल रिटेन्स, इट इज नॉट गिविंग अप। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। यस, आई थिंक दैट इज द फाइनल, उसका ये चल रहा है, राइट, फाइनल स्टेजेस में ही है, ओके। Concerns of activists, especially related to that on the health front, need to be examined on the prompt basis. Okay, this is important. अब एक कंक्लूजन में है कि एज अ नेशन that is inching towards becoming the third largest economy, it is important that laws are continuously evaluated. And at the same time, we should not let our guard down against potential violation which goes against public interest. तो ये मैंने जो conclusion दिया, this is for your answer writing and you can consider this conclusion because this is directly picked up from an article that was present in the Hindu. Okay. Any questions with regards to this bill, please? Now I'll open the floor for you because I am done with whatever I had to speak. Any questions? Okay, no. I hope this was clear. Okay, this is a very open and shut kind of bill. ठीक है. So can a conclusion be made on whether the bill is net positive, net negative? It needs to be seen. It needs to be seen. It is a net positive on paper. It is a net positive on paper, but knowing what we know about the system and how it works on the ground, Indian civil servants and Indian government servants, they are one of the most creative creatures when it comes to finding ingenious ways on how to do corruption.
So it needs to be seen that how the government, okay, how the government it responds, okay, it responds basically to the feedback from the industry. Okay, any checks against executive corruption in bill? No, I think see, there is no provision that is saying that suppose if a drug inspector walks into a pharma factory and does corruption, so he will be liable to this month of jail. No, that is no. But there are other provisions, Prevention of Corruption Act, and there are also CBI will look into it if there is a substantial complaint made. Okay, so CBI can look into it. The Vigilance Commission, the State Vigilance Department, the State CID can also look into it. So there are a lot of avenues that I talked about. I think ethics class में मैंने बताया था, right? Are these situations as such not taken into consideration while deliberating the provisions of the bill? So see, what happens is that when a bill is made, okay, it is made on a very idealistic basis. Okay, as we saw in the that the recently जो अभी हुआ है आईपीसी सीआरपीसी और जो एविडेंस एक्ट को वो कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एक आइडियलिस्टिक बेसिस पे है. अब आइडियलिस्टिक बेसिस पे लागू तो कर देते हैं, but what happens is that then they get the feedback that okay, what is happening. I'll tell you this thing. 498A का 498A में बहुत आइडियलिस्टिक था. तो उसमें क्या है, उसमें बोला गया कि all men are by default all men जो है are guilty and all women who complain they are innocent. लेकिन फिर क्या हुआ, when on the ground they saw that oh my god, 56 to 60%, okay, 55 to 60% cases they are false. All right, in the pursuit of getting justice for 40% of the women, suppose 100 women file a case, तो उसमें से 60 women पर्सनल वेंडेटा के कारण डाल रही थी, हो रहा था ना 498A में. So then the system said कि okay, now we are launching some provisions where we will give some respite, that okay, you cannot arrest. All right, you cannot arrest directly. If a there needs to be proper investigation from us inspector or us SHO, then only there can be an arrest. Okay, so ये चीज है. उसी तरीके से जब भी एक लॉ बनता है तो बहुत ही एक आइडियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे बनता है, एक आइडियलिस्टिक टेम्पलेट पे बनता है. एंड व्हेन इट इज अप्लाइड, तो जुडिशियरी और executive and even the legislature, sorry, they all the three scrutinize and get the feedback from the general public. और फिर जुडिशियरी अपना बोलती है कि अच्छा जी आप ऐसे कर लो, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, ऑर्डर्स निकालती है, लेजिस्लेचर क्या करता है, अमेंडमेंट्स करता है, एंड देन इट इज मेड परफेक्ट ऑन द ग्राउंड. पहले इट इज परफेक्ट ऑन द पेपर, and then through successive amendments, through successive orders and through successive judgments, it is made perfect on the ground. Okay, ठीक है. I hope I gave your answer, Sai. The discourse on such changes of law is over the linguistic balderdash of its. Okay, this is not a question, right? So you are correct, although. Okay, so this is done. Any more questions?